And we want to continue thinking a little more deeply about God's plan for an excellent marriage. हम एक उत्कृष्ट विवाह के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में थोड़ा और गहराई से सोचना जारी रखना चाहते हैं। And if you listen carefully, I believe this can change your life. और यदि आप इस अध्ययन पर ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे तो मेरा मानना है कि यह आपका जीवन बदल सकता है। We saw in our last study that God was the person who should be between a husband and wife. हमने अपने पिछले अध्ययन में देखा कि परमेश्वर को पति और पत्नी के बीच होना चाहिए। And only God for them to be bound together throughout their life on earth. और उनके लिए पृथ्वी पर जीवन भर एक साथ बंधे रहने के लिए केवल परमेश्वर ही है। Because God is the greatest binding force in the universe. क्योंकि परमेश्वर संसार में सबसे बड़ी बांधने वाली शक्ति है। If anything else comes in between, money, parents, job, children, there's going to be confusion. अगर बीच में कुछ और आता है, पैसा, माता पिता, नौकरी, बच्चे, तो अशांति की स्थिति बनी रहेगी। Should you honor your parents? Definitely. क्या आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए? निश्चित रूप Don't से। let them come between you and your marriage partner. लेकिन उन्हें अपने और अपने जीवन साथी के बीच में न आने दे। Should you take care of your children? क्या आपको अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए? Yes. You need to sacrifice for your children. Do many things for your children. हाँ, आपको अपने बच्चों के लिए त्याग करने की जरूरत है। अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। But don't love your children more than you love one another. लेकिन अपने बच्चों को एक दूसरे से ज्यादा प्रेम न करें। That's not God's यह will. परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Many parents love their children more than they love each other. कई माता पिता अपने बच्चों को एक दूसरे से अधिक प्रेम करते हैं। They disobey God. I'm talking about believers. वे परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। मैं यहाँ विश्वासियों के बारे में बात कर रहा हूँ। There is no relationship spoken of in the entire Bible as close as a relationship of a husband and wife. संपूर्ण बाइबल में पति पत्नी के रिश्ते जितना घनिष्ठ कोई रिश्ता नहीं बताया गया है। You know the example used in Ephesians chapter 5? आप इफिसियों अध्याय 5 में उदाहरण के बारे में जानते हैं। The husband is the head of the wife. In what way? कि पति किस प्रकार पत्नी का सिर है। Not like the head of an organization. किसी संगठन के मुखिया की तरह नहीं। Do you know the difference between the head of an organization and the head of a physical body? क्या आप किसी संगठन के सिर प्रमुख और भौतिक शरीर के सिर के बीच अंतर जानते हैं? The head of an organization may not have any interest in the members in that organization. किसी संगठन के सिर प्रमुख को उस संगठन के सदस्यों में कोई रुचि नहीं हो सकती है। But the head in your physical body has got a very living interest in every part of your physical body, every member. लेकिन आपके भौतिक शरीर में सिर को भौतिक शरीर के प्रत्येक भाग, प्रत्येक सदस्य में बहुत जीवंत रुचि होती है। That is the will of God. यही परमेश्वर की इच्छा है। So the relationship between a husband and wife is pictured in Ephesians chapter 5 as close and as intimate as the relationship between your physical head and the rest of your body. तो इफिसियों अध्याय 5 में पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को आपके भौतिक सिर और आपके शरीर के बाकी हिस्सों के बीच के रिश्ते के समान ही घनिष्ठ और अटूट बताया गया है। Can you think of a closer relationship than that? क्या आप इससे भी करीबी रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं? Your physical head and your physical body. आपका भौतिक सिर और आपका भौतिक शरीर। That is the closest, most intimate relationship one can think of. यह सबसे करीबी, सबसे अंतरंग रिश्ता है जिसके बारे में कोई सोच सकता है। Even a father and son are not described in the Bible as head and body. यहाँ तक कि बाइबल में पिता और पुत्र को सिर और शरीर के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। Mother and daughter are not described like that. माँ और बेटी का वर्णन इस तरह नहीं किया गया है। No. Parents and children are not described like that. नहीं, माता पिता और बच्चों का वर्णन इस प्रकार नहीं किया गया है। It's only a husband and wife. यह सिर्फ पति और पत्नी के बारे में है। That is the closeness with which God wants husband and wife to live. यही वो निकटता है जिसके साथ परमेश्वर चाहता है कि पति और पत्नी रहे। So
In other words, you should love one another more than you love your children. दूसरे शब्दों में आपको हर दूसरे रिश्ते से ज्यादा एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। If you love your children more, you're destroying your marriage. यदि आप अपने बच्चों से अधिक प्रेम करते हैं तो आप अपनी शादी को नष्ट कर रहे हैं। If you love your parents more, you're destroying your marriage. यदि आप अपने माता पिता से अधिक प्रेम करते हैं तो आप अपनी शादी को नष्ट कर रहे हैं। If you love your job more, you're destroying your marriage. यदि आप अपनी नौकरी से अधिक प्रेम करते हैं तो आप अपनी शादी को नष्ट कर रहे हैं। Even if you love your ministry more, you're destroying your marriage. भले ही आप अपने सेवकाई से अधिक प्रेम करते हो, फिर भी आप अपनी शादी को नष्ट कर रहे हैं। When I said you must put the Lord first, don't misunderstand that it means you must put the Lord's work first. No. जब मैंने कहा कि आपको प्रभु को पहले रखना चाहिए तो यह मत समझिए कि इसका मतलब है कि आपको प्रभु के कार्य को पहले रखना चाहिए। नहीं, There is a difference between the Lord and the Lord's work. परमेश्वर और परमेश्वर के कार्य में अंतर है। Many people don't understand that. बहुत से लोग इसे नहीं समझते। There are people who ignore their wives saying, I'm doing the Lord's work. ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नियों की उपेक्षा करते हुए कहते हैं मैं परमेश्वर का कार्य कर रहा हूँ। What's the result? नतीजा क्या होता है? Their marriage gets destroyed, and finally their so-called Lord's work also gets destroyed. उनका विवाह नष्ट हो जाता है और अंततः उनका तथाकथित परमेश्वर का कार्य भी नष्ट हो जाता है। That's not God's will. यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। How should our spiritual life be built? हमारा आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कैसे होना चाहिए? Let me use the picture of a 3-story house. मैं एक 3 मंजिला घर की तस्वीर का उपयोग करना चाहता हूँ। If you're building a 3-story house, a ground floor, first floor, and a second floor, or a first story, second story, third story. मान लीजिए कि आप एक 3 मंजिला घर बना रहे हैं, एक भूतल, पहली मंजिल और एक दूसरी मंजिल, या पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। The first thing you build is the foundation. पहली चीज जो आप निर्माण करते हैं वह नींव है। And the foundation is God's perfect love for us. और नींव जो है वो हमारे लिए परमेश्वर का परिपूर्ण प्रेम है। On that foundation we must build. उस नींव पर हमें निर्माण करना होगा। There is no other foundation revealed in Jesus Christ. और दूसरी कोई नींव नहीं है जो प्रभु यीशु में प्रकट हुई है। On that foundation we first of all build the first story or the ground floor, whichever way you call it. उस नींव पर सबसे पहले हम पहली मंजिल या भूतल, जो भी आप इसे कहते हैं, बनाते हैं। The first story is our own personal walk with God. पहली मंजिल परमेश्वर के साथ हमारी अपनी निजी यात्रा है। That means your relationship with God, where you walk in the light, you keep your conscience clear. इसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता, जहां आप प्रकाश में चलते हैं, आप अपना विवेक साफ रखते हैं। And you listen to the voice of the Holy Spirit telling you where you need to cleanse yourself from all filthiness of the flesh and spirit. और आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं जो आपको बताती है कि आपको शरीर और आत्मा की सभी गंदगी से खुद को कहाँ साफ करने की जरूरत है। That is the first story. वह पहली मंजिल है। And whether you're married or single, that is the first story. चाहे आप शादीशुदा हो या अकेले हो, वह पहली मंजिल है। You have to build that first. आपको पहले वह बनानी है। Once you've built that, or as you're building that, you go to the second story. एक बार जब आप इसे बना लेते हैं या जब आप इसे बना रहे होते हैं, आप दूसरी मंजिल पर चले जाते हैं। What is the second story? दूसरी मंजिल क्या है? The second story, if you're married, is your relationship with your wife. दूसरी मंजिल, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी के साथ आपका रिश्ता है। So, after we have built a relationship with the Lord, we seek to build a relationship with our wives. इसलिए परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के बाद हम अपनी पत्नियों के साथ रिश्ता बनाने की ओर बढ़ते हैं। That's the second story. वह दूसरी मंजिल है। Our home relationship. And from the wife to the children. हमारा पारिवारिक रिश्ता पत्नी से लेकर बच्चों तक। The wife first, or the husband first. लेकिन पहले पत्नी या पहला पति। And then we come to the third story, which is our ministry. The church. फिर हम तीसरी मंजिल पर आते हैं जो कि हमारी सेवकाई है, एक कलीसिया। For example, if you're an elder in the church, do you know what it says? One of the qualifications of an elder in a church in 1 Timothy 3 is? उदाहरण के लिए यदि आप किसी कलीसिया में प्राचीन है तो क्या आप जानते हैं कि पहला तिमोथियो 3 में एक प्राचीन की योग्यताओं के बारे में क्या कहा गया है? He must have a good home. उसके पास एक अच्छा घर होना चाहिए। He must be the husband of one wife
and he should have brought up his children properly. वह एक ही पत्नी का पति हो और उसने अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से किया हो। Why? In 1 Timothy 3 it says, क्यों ऐसा पहला तिमोथियो 3:5 में कहा गया है? listen carefully. इसे ध्यान से सुने। If a man cannot control his own house, how will he control the church? यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो वह कलीसिया पर कैसे नियंत्रण करेगा? So which comes first? House or church? तो पहले कौन आता है, घर या कलीसिया? You know that. आप जानते हैं, यह बिल्कुल It's स्पष्ट clear. है। Your house. सबसे पहले आपका घर है। You first control your house, then you'll be able to control the church. आप पहले अपने घर पर नियंत्रण करें, फिर आप कलीसिया पर नियंत्रण कर पाएंगे। If you can't control the house, you can't control the church. यदि आप घर को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप कलीसिया को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। So the ministry comes after your family. तो सेवकाई आपके परिवार के बाद आती है। That's God's वो word. परमेश्वर का वचन है। God comes first, पहले परमेश्वर आते हैं, then my home, फिर मेरा घर and then God's work. और फिर परमेश्वर का काम। Then I have a base on which to do God's work. तब मेरे पास परमेश्वर का कार्य करने का एक आधार है। This is where the devil has destroyed so many people. यहीं पर शैतान ने बहुत से लोगों को नष्ट किया है। He's made them concentrate on the Lord's work. ने उन्हें प्रभु के कार्य पर ध्यान केंद्रित कराया है। What is the result? परिणाम क्या है? Their children are unconverted, go astray. उनके बच्चे अपरिवर्तित रहते हैं, भटक जाते हैं। They fight and quarrel with their wives at home, and they are doing God's ministry. वे घर में अपनी पत्नियों से लड़ते झगड़ते हैं और वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। It's a disgrace. यह अपमान है। I believe such people should resign from God's ministry and go and sit at home and build a relationship with their wives and their children first. मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को परमेश्वर की सेवकाई से इस्तीफा देकर घर बैठना चाहिए और पहले अपनी पत्नियों और अपने बच्चों के साथ रिश्ते पर काम करना चाहिए। Now, I'm not saying that your wife has to be spiritual before you serve the Lord. अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर की सेवा करने से पहले आपकी पत्नी को आध्यात्मिक होना होगा। There are many people who have served the Lord, including great men like John Wesley, who had thoroughly carnal and probably even an unconverted wife. ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने गैर आध्यात्मिक पत्नियों के साथ प्रभु की सेवा की है, जिनमें जॉन वेस्ले जैसे महान व्यक्ति भी शामिल है, जिनकी पत्नी पूरी तरह से शारीरिक थी और शायद एक अपरिवर्तित पत्नी भी थी। But your attitude to your wife, you are in control of. लेकिन जहाँ तक आपकी पत्नी के प्रति आपके रवैये का सवाल है तो आप इस पर नियंत्रण रखते हैं। It must be one of perfect love. वहाँ पूर्ण प्रेम होना चाहिए। Even if she's the most evil person in the world. If your attitude to your wife is not one of love, you cannot do God's ministry. भले ही वो दुनिया की सबसे बुरी व्यक्ति हो, यदि अपनी पत्नी के प्रति आपका दृष्टिकोण प्रेम का नहीं है तो आप परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते। Whether you have a good relationship or not, of course, is a two-sided affair, and if there's no cooperation from the other side, you may not have a good relationship. That's another thing. बेशक आपके बीच अच्छे रिश्ते हैं या नहीं, यह दो तरफा मामला होता है, और अगर दूसरी तरफ से कोई सहयोग नहीं है तो आपके रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते, वह दूसरी बात है। But from your side, you must always be willing to humble yourself, always be willing to wash your feet. लेकिन अपनी ओर से आपको हमेशा खुद को नम्र करने के लिए तैयार रहना चाहिए, हमेशा उसके पैर धोने के लिए तैयार रहना चाहिए। The Bible says, like Jesus loved the church, the husband must love his wife. बाइबल कहती है कि जैसे प्रभु यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसे ही पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए। What should the husband do? पति को क्या करना चाहिए? Be willing to wash the wife's feet. In other words, be willing to do dirty jobs for your wife. पत्नी के पैर धोने के लिए तैयार रहे। दूसरे शब्दों में अपनी पत्नी के लिए गंदगी साफ करने को तैयार रहे। That's what Jesus did for the church. प्रभु यीशु ने कलीसिया के लिए यही किया। How many times does Jesus forgive the church? प्रभु यीशु ने कितनी बार कलीसिया को माफ किया? Millions and millions and millions of times. लाखों और करोड़ों बार। How many times should a husband forgive his wife? एक पति को अपनी पत्नी को कितनी बार माफ करना चाहिए? Millions and millions and millions of times. Infinitely. लाखों करोड़ों बार, अनंतता के लिए। This is what it means to love your wife as Christ loved the church. अपनी पत्नी से वैसे प्रेम करना जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया था, का यही अर्थ है। If you want a happy marriage, follow the Maker's instructions in Ephesians and chapter 5 and verses 22
to 33. यदि आप एक सुखी विवाह चाहते हैं तो इफिसियों 5:22 से 33 में निर्माता के निर्देशों का पालन करें। What about wives? In fact, the command to wives comes first, before the command to husbands. पत्नियों के बारे में क्या? वास्तव में पत्नियों के लिए आदेश पतियों के लिए आदेश से पहले आता है। If you're a wife, what does God tell you to do? Listen carefully. यदि आप एक पत्नी है तो परमेश्वर आपसे क्या करने को कहते हैं? ध्यान से सुने। Be subject to your husband. Verse 22 of Ephesians 5 and 24 it tells you how to be subject. अपने पति के अधीन रहो। इफिसियों 5:22 फिर वचन 24 आपको बताता है कि कैसे अधीन रहें। It's very interesting. यह बहुत दिलचस्प है। As the church is subject to Christ, so also wives ought to be to their husbands in every single thing. जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियों को भी हर चीज में अपने पतियों के अधीन होना चाहिए। How does the church obey the Christ, obey the Lord? कलीसिया मसीह की आज्ञा कैसे मानती है? प्रभु की आज्ञा कैसे मानती है? Not with argument and strife and reluctantly, but joyfully in everything. तर्क वितर्क और कलह से और अनिच्छा से नहीं बल्कि हर बात में खुशी से। So unless your husband tells you to do something which is contrary to the word of God, in which case you must obey God and not your husband. इसलिए जब तक आपका पति आपको कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहता जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है, उस स्थिति में आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए, न कि अपने पति की। In all other areas, a wife should obey her husband. अन्य सभी क्षेत्रों में पत्नी को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। That is the teaching of the word of God. यही परमेश्वर के वचन की शिक्षा है। Now, I want to give a warning here. अब मैं यहाँ एक चेतावनी देना चाहता हूँ। The great danger, even in Christian families, is मसीह परिवारों में बड़ा खतरा यह है कि husbands will take a verse like this addressed to the wives and use it as a hammer to hit their wives on the head with. पति इस तरह का एक वचन लेते हैं और इसे पत्नियों को संबोधित करते हैं और इसे हथौड़े के रूप में अपनी पत्नियों के सिर पर मारने के लिए उपयोग करते हैं। Saying, see what the Bible says, you must be subject to me. वे कहते रहते हैं, देखो बाइबल क्या कहती है, तुम्हें मेरे अधीन रहना होगा। Now listen carefully, husbands. अब पतियों ध्यान से सुनो। The Bible does not say, husbands, get your wives to submit to you. No. बाइबल यह नहीं कहती पति अपनी पत्नियों को अपने अधीन कर ले, नहीं। Your job is only to love your wife as Christ loved the church. That's all. आपका काम केवल अपनी पत्नी से प्रेम करना है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया था, बस इतना ही। And let me say a word to you wives. और मैं तुम पत्नियों से भी एक बात कहता हूँ। There is no verse in scripture which says, wives, get your husbands to love you as Christ loved the church. पवित्र शास्त्र में ऐसा कोई वचन नहीं है जो कहता हो पत्नियां अपने पतियों को तुमसे प्रेम करने को कहे जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। But that's how some husbands and wives understand it. लेकिन कुछ पति पत्नी इसे इसी तरह समझते हैं। They go to a passage like this and the husband is reading what the wife should do instead of reading what he should do. वे इस तरह के एक अंश में जाते हैं और पति यह पढ़ रहा है कि पत्नी को क्या करना चाहिए, यह पढ़ने की बजाय कि उसे क्या करना चाहिए। And the wife is reading what the husband should do instead of reading what she should do. पत्नी यह पढ़ रही है कि पति को क्या करना चाहिए, न कि यह पढ़ रही है कि उसे क्या करना चाहिए। Then there is absolute confusion. Just like in the Garden of Eden. तब पूर्ण गड़बड़ी होती है, बिल्कुल एदन वाटिका की तरह। Adam began to point the finger at Eve. आदम ने हव्वा पर उंगली उठानी शुरू कर दी। God said, let me paraphrase God's words. What's the cause of the problem? परमेश्वर ने कहा, मुझे परमेश्वर के शब्दों को संक्षेप में कहने दीजिए, समस्या का कारण क्या है? Adam points his finger at his wife and says, she is the cause of the problem. आदम अपनी पत्नी पर उंगली उठाता है और कहता है वही समस्या का कारण है। You see, that started in Genesis chapter 3. आप देखिए, इसकी शुरुआत उत्पत्ति 3 से हुई। Pointing the finger at the wife and saying, this whole problem started with her. पत्नी पर उंगली उठाना और यह कहना कि यह पूरी समस्या उसके साथ शुरू हुई। And then indirectly blaming God and saying, this is the wife you gave me. What can I do? और फिर परोक्ष रूप से परमेश्वर को दोष देना और कहना यह वह पत्नी है जो आपने मुझे दी थी, मैं क्या कर सकता हूँ। So he doesn't take the blame himself. इसलिए वह स्वयं दोष नहीं लेता। And then God asks the wife, what's the cause of the problem? She points her finger at the serpent and says, that's the cause of the problem, the devil. और फिर परमेश्वर ने पत्नी से पूछा, समस्या का कारण क्या है?
उसने सांप की ओर अपनी उंगली उठाई और कहा, यह समस्या का कारण है, वह शैतान। The devil caused it. I mean, it's not my fault. The devil did something. शैतान इसका कारण बना। मेरा मतलब है कि यह मेरी गलती नहीं है, शैतान इसका कारण बना। I want to tell you, dear friends, as long as you're blaming each other and blaming the devil, you will just be thrown out of paradise. That's what happened. ये दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और शैतान को दोष दे रहे हैं, तब तक आपको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाएगा। उनके साथ यही हुआ। God sent them both out of paradise because they were not willing to take the blame. परमेश्वर ने उन दोनों को स्वर्ग से बाहर भेज दिया क्योंकि वे दोष लेने को तैयार नहीं थे। They sinned. उन्होंने पाप किया। What was Adam's sin? आदम का पाप क्या था? He didn't take his place as the head of the home उसने there. वहाँ घर के मुखिया के रूप में अपना स्थान नहीं लिया। When Eve was eating that fruit, he should have stopped her and said, that's wrong. But he stood there dumbly. जब हव्वा वह फल खा रही थी तो उसे रोकना चाहिए था और कहना चाहिए था, यह गलत है, लेकिन वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। The first husband was an effeminate husband. पहला पति एक नपुंसक पति था। He couldn't take his place as the head of his वह home. अपने घर के मुखिया के रूप में अपना स्थान नहीं ले सका। And when husbands don't take their place as the head of the home, there's confusion in the home. जब पति घर के मुखिया के रूप में अपना स्थान नहीं लेते तो घर में गड़बड़ी फैल जाती है। When wives don't take their place as the helpers in the home, but start taking the leadership like Eve took in the Garden of Eden, again the devil comes in. There's confusion. जब पत्नियां घर में सहायक के रूप में अपना स्थान नहीं लेती बल्कि नेतृत्व करना शुरू कर देती है, जैसे हव्वा ने एदन वाटिका में किया था, तो शैतान मध्य में आ जाता है और गड़बड़ी फैला देता है। So we need to stop blaming one इसलिए another हमें एक दूसरे पर दोषारोपण करना बंद करना होगा। and say, Lord, if you're a husband, say, Lord, my duty is not to find out what my wife has to do. My duty is to love her as Christ loved the church. यदि आप पति है तो कहें, हे प्रभु, मेरा कर्तव्य यह पता लगाना नहीं है कि मेरी पत्नी को क्या करना है। मेरा कर्तव्य है कि मैं उससे वैसे ही प्रेम करूं जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ किया था। And if you're a wife, you need to say, Lord, my duty is not to find out what my husband has to do, but to be subject to him. और यदि आप एक पत्नी है तो आपको यह कहना होगा, हे प्रभु, मेरा कर्तव्य यह पता लगाना नहीं है कि मेरे पति को क्या करना है, बल्कि उसके अधीन रहना है। If each of you can do what God wants you to do instead of being a busybody and finding fault with your partner, saying he is not doing what God has told him to do, there can be peace. यदि आप में से प्रत्येक वह कर रहा है जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं, इसके बजाय व्यस्त रहने और अपने साथी में दोष ढूंढना, यह कहते हुए कि वह नहीं कर रहा है जो ईश्वर ने उससे करने के लिए कहा है, तो शांति हो सकती है। Otherwise, there will be continued confusion. अन्यथा गड़बड़ी की स्थिति बनी रहेगी। Why not start taking the blame yourself, humbling yourself from today and experience that excellent marriage God wants to give क्यों you. ना आज से ही स्वयं को नम्र बनाकर दोष स्वयं लेना शुरू कर दे और उस उत्कृष्ट विवाह का अनुभव करे जो ईश्वर आपको देना चाहता है।